Dr. Mamta Sharma, Faculty Member of Commerce, EAFM at SS Jain Subodh PG Mahila Mahavidyalaya. In previous two videos, we have already discussed two techniques of capital budgeting, that is payback period and average rate of return. Today we are going to discuss another technique of capital budgeting, that is net present value method. Let us try to understand net present value. Net present value is a tool of capital budgeting to analyze the profitability of a project or investment. It is calculated by taking the difference between the present value of cash inflows and present value of cash outflows over a period of time. This method is very important for analysis of capital expenditure and it is based on time adjusted rate of return. That means आज हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 साल बाद जो वो 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो नहीं रहेगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकती है और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इस टेक्निक से हम जो आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको फ्यूचर में हमें क्या वैल्यू हमें हमें मिलेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। Advantage of net present value method. Simple method. It is simple method. It does not require complex calculations like internal rate of return method. Suitable in uneven cash inflows. If cash inflows are uneven, then this method is more suitable because we find present values and add them. Important of time value of money. It gives due importance to the time value of money and therefore it discounts future cash inflows with the appropriate discount rate. Disadvantage of NPV: different to determine difficult to determine expected rate of return. In this method, appropriate discount rate of return is to be determined and this is difficult task. Uniform discount rate is not good. In this method, all projects are discounted with an uniform rate, whereas the risk and life of various projects quite different. कि हम एक ही रेट को फॉलो करेंगे जो कि सही नहीं है कि ये अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो सकती है. Difficult to understand. This method is more difficult than payback period method and average rate of return method. Not suitable for projects having uneven life. If various projects are having different lifespan, this method is not suitable. Same जो प्रोजेक्ट जिनकी लाइफ सेम होगी उन्हीं का कंपैरिजन हम इस फाइनेंशियल टेक्निक से कर सकेंगे. दो प्रोजेक्ट जिनकी लाइफ डिफरेंट डिफरेंट है उनका हम कंपैरिजन इस टेक्निक से नहीं कर सकेंगे. Steps to calculating NPV. First is determination of minimum rate of return. वो हमें गिवन होगी क्वेश्चन में. Computation of present value. फिर जो हमें कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज गिवन होंगे उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. देन कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे. Decision rule. If the present value of cash inflows is equal to or more than the initial investment, then the proposal is accepted. When management has to choose only one project out of available many alternatives project, then that project is chosen whose net present value is highest. In very simple, अगर एक ही प्रोजेक्ट है और उसका हमें एनालिसिस करना है कि हम हमारे पैसे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें नहीं करें, तो अगर हमारी एनपीवी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव कब होगी जब हमारी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज की ज्यादा होगी आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू से. तब हम हमारा मतलब जब हमारा आंसर पॉजिटिव होगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे. और अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं और सबका सबकी जो कैलकुलेशन है वो सब हमारा जो आंसर है वो सब पॉजिटिव है, तो कंपनी कौन सा चूज करेगी जिसकी एनपीवी हाईएस्ट होगी.
For computation of NPV method, we have to compare present value of cash inflows and present value of cash outflow, or we can say difference between present value of cash inflow and present value of cash outflow is equals to NPV. First of all, we are going to understand how to calculate PV factor, although most of the time PV factor is given in the question. और अगर हमें गिवन नहीं होगा तो हम कैसे, ये फॉर्मूला है पीवी फैक्टर का, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? CF मीन्स कैश इनफ्लोज ऑफ फर्स्ट ईयर, कैश इनफ्लोज ऑफ सेकेंड ईयर, कैश इनफ्लोज ऑफ थर्ड ईयर, कैश इनफ्लोज जितने भी ईयर, जितनी भी लाइफ है, हम तब तक इसको लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर 1 plus cash inflow of second year divided by 1 plus r raised to the power 2 plus cash inflow of third year divided by 1 plus r raised to the power 3। ऐसे जब तक लाइफ है हम इसको, इस फॉर्मूले को कंटिन्यू आगे लेके जाएं। Now let us see the with the help of example. A project involves a net cash inflows of $1,000 of a year of 5 years and the cost of capital is 10%. Calculate the PV factor. हमारे पास में हमें कैश इनफ्लोज कितना मिल रहा है? इक्वल है, इवन है, 1000 रुपीज, और कितनी लाइफ है? 5 ईयर्स। तो हम इसको पीवी फैक्टर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैश इनफ्लो हमारा कितना है? 1000, और 10% हमें डिस्काउंट रेट दे रखी है, तो 10% है, परसेंट को अपन हटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 0.1। तो क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1000। सेकेंड ईयर में कैश इनफ्लोज तो इक्वल ही है 5 ईयर, तो वो तो सेम ही आएगा अमाउंट। 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर 3 प्लस 1000 divided by 1 plus 0.1 raised to the power 4 plus 1000 divided by 1 plus 0.1 raised to the power 5। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा। पीवी फैक्टर फॉर फर्स्ट ईयर 0.909, पीवी फैक्टर ऑफ सेकेंड ईयर 0.826, फॉर थर्ड ईयर 0.751, फॉर फोर्थ ईयर 0.8684 एंड फॉर फिफ्थ ईयर 0.621। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10% की जगह 20 होता तो हम यहाँ क्या कर देते? 0.2, 1 प्लस 0.2। Now let us see the computation of present value through the example. Example: an investment of rupees 25,000 having scrap value of rupees 1,000 yield the following returns. For investment, how much investment? 25,000. That means it is outflow, it is a outflow, और we are going to investment। तो हमारा investment कितना है? 25,000 का। और scrap value means, scrap value refers to an estimate of value of long lived assets at the end of its useful life. It is also in cash inflow, so we calculate its present value also। कि पूरी लाइफ खत्म होने के बाद में अगर हम उसको सेल करते हैं तो जो भी हमें मिलता है वो उस एसेट्स का स्क्रैप वैल्यू होती है। तो ये भी इनफ्लो है, ये भी इनकम है, तो इसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। इज द इन्वेस्टमेंट इज डिजायरेबल? कब होगा डिजायरेबल? अपने डिसीजन रूल देखे थे, अगर हमारी एनपीवी पॉजिटिव होगी तो इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव होगी तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। डिस्कस it according to NPV method, assuming the PV factor of for first, second, third, fourth and fifth year 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 and 0.620 रिस्पेक्टिवली। अब हमें ये कैलकुलेट करके दिए हुए हैं, और अगर ये नहीं दिए हुए तो हम प्रीवियस, अभी हमने पहले देखा था कि पीवी फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसमें ईयर दे रखे हैं 1 2 3 4 5। कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स 10,000, 12,000, 8,000, 8,000 and 5,000। How to calculate?
net present value. See the solution table. First we have to write year, then cash inflows after tax, then PV factor. All these information are given in the question. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? केवल प्रेजेंट वैल्यू. हमें क्वेश्चन में ईयर्स भी गिवन है, कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स गिवन है, पीवी फैक्टर गिवन है और प्रेजेंट वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू मीन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय cash inflow after tax multiplied by PV factor. That means 10,000 multiplied by 0.909 is equals to 9090. Then 12,000 multiplied by 0.826 is equals to 9912. Then third year 8,000 is multiplied by 0.751 is equals to 6,008. Next for fourth year 8,000 is multiplied by 0.683 is equals to 5,464. And fifth year 5,000 multiplied by 0.620 is equals to 3,100. Then fifth year, क्योंकि लाइफ 5 ईयर है तो 5 ईयर के बाद हमें स्क्रैप मिलेगा जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी. ये भी एक इनफ्लो है 1,000 रुपीज. तो इसका भी जो पीवी फैक्टर, क्योंकि फिफ्थ ईयर में तो हमें ये मिल रहा है, तो जो फिफ्थ ईयर का पीवी फैक्टर होगा वो ही स्क्रैप के लिए हम पीवी फैक्टर को यूज करेंगे सेम दोनों में, क्योंकि ये भी फिफ्थ ईयर में ही हमें मिल रहा है. तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.620 इज इक्वल्स टू 620. अब हम इन सबका इन 5 ईयर्स का हम सम कर लेंगे. देन वी विल गेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल्स टू 34,194. अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल्स टू नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अभी हमने कैलकुलेट किए थे, कितने आए थे? 34,194. और इसमें से हमने लेस कर दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की. प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 25,000. तो इसको 34,194 माइनस 25,000, तो हमारी एनपीवी आ गई 9,194. आई होप you have understood net present value. Thank you.